नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बार बार पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर का राग अलापा जाता है, लेकिन हर बार पाकिस्तान को भारत के द्वारा करारा जवाब दिया जाता है। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है अपने आदत से बाज नहीं आता। दरअसल हाल ही में एक बार फिर से मामला देखने को मिला जब पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा। बता दें, दरअसल भारत ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में पाकिस्तान को बार बार गलती करने का आदी करार दिया है। पाकिस्तान ने इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के बीच ही कश्मीर का मसला उठा दिया था। इस पर यूएन में भारतीय डिप्लोमेट की ओर से पाकिस्तान को आईना दिखाया गया। भारत की ओर से पाकिस्तान की टिप्पणी का जवाब देना भी वाजिब नहीं समझा गया। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन में लोगों की आजादी को दबा रहा है, ठीक वैसे ही भारत भी कश्मीर में कश्मीरियों की आवाज सुनने से इनकार कर रहा है। इस पर ही भारत की ओर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। बता दें कि भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में पाकिस्तान को बार बार गलती करने का आदी होते हुए जिस तरीके से करारा जवाब दिया, उसकी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर का राग अलापा जाता है, लेकिन कश्मीर को लेकर के जब भी पाकिस्तान ये बातें उठाता है तो हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। Some in this council have offered protection to their allies who are oppressing occupied peoples in Palestine and in Kashmir. There was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. Under the UN Charter, states have the right of self-defense and against attacks on their sovereignty and territorial integrity. Yet, a state which is in forcible occupation of a foreign territory cannot invoke the right to self-defense against those whose territory it has illegally occupied. I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response in the interest of time. Under international law, the struggle of peoples living under foreign occupation for self-determination and national liberation is legitimate and cannot be equated with terrorism. It is the suppression of this struggle which is illegal. Throughout history, colonial powers have portrayed national liberation movements as terrorism. Some in this council have offered protection to their allies who are oppressing occupied peoples in Palestine and in Kashmir. Under the UN Charter, states have the right of self-defense and against attacks on their sovereignty and territorial integrity. Yet, a state which is in forcible occupation of a foreign territory cannot invoke the right to self-defense against those whose territory it has illegally occupied. Mr. President, the perpetuation of Israeli occupation will not bring peace to the Holy Land. Durable peace will emerge from the internationally agreed two-state solution and from the creation of a secure, viable, contiguous and sovereign state of Palestine on the basis of the pre-June 1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. Before I end, there was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response
in the interest of time. इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बता दें कि मुनीर अकरम ने कहा था कि सुरक्षा परिषद पर विश्व शांति को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वो गाजा में नरसंहार को रोकने में विफल रही है। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से यह भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में नरसंहार और अत्याचार को नहीं रोक पाई है। मुनीर अकरम की माने तो कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजराइल की तरह भारत के 9 लाख सैनिक कश्मीरियों की आजादी की लड़ाई को बेरहमी से दबाने की कोशिश की है। उनकी माने तो यह कश्मीर के लिए आखिरी समाधान का अशुभ संकेत है। बता दें दरअसल 1 महीने पहले ही पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने भी महासभा में कश्मीर का मसला उठाया था। तब भी भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया था। भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सबसे बड़ी संख्या में यह देश आतंकवादियों को पनाह देता है। अभी तक इस देश ने 26 से 11 के आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई हुई है। भारत की तरफ से कहा गया कि सबसे पहले सीमा पार आतंकवाद को रोके और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को तुरंत बंद करे। दूसरा, अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करे। और तीसरा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ गंभीर और लगातार हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोके। और ठीक तरीके से जो हिदायत दी उसके मुताबिक यही कि पाकिस्तान पहले खुद के गिरबान में झांके, फिर उसके बाद भारत या फिर कश्मीर को लेकर के कोई टीका टिप्पणी करे। आपको याद दिला दे जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान के द्वारा यह मुद्दा उठाया जाता है कश्मीर को लेकर के, और यह कहा जाता है कि कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए और उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात कश्मीर की करें, जब से वहां पर धारा 370 हटाई गई है तब से वहां का जो पूरा का पूरा तस्वीर है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज वहां पर लाल चौक में तिरंगा फहराया जाता है। नवरात्रि के अवसरों पर तमाम जो वहां पर मंदिर है वहां पर अच्छी खासी तरीके से पूजा पाठ होती है और बाकायदा जो श्रद्धालु है वो भी वहां पर आते हैं। इसी के साथ ही अगर हम पर्यटन को देखें तो दिन ब दिन घाटी में पर्यटन का इजाफा भी हो रहा है। जो हाथ कभी पत्थर उठाए हुए नजर आते थे और अपने ही सैनिकों पर पत्थर बरसाते हुए नजर आते थे, आज उन हाथों में किताबें हैं, कलम है और युवा जो है वहां पर रोजगार कर रहे हैं। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो ये संकेत देती है कि कैसे जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाई गई है वहां पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन बार बार पाकिस्तान जो है कश्मीर के राग को अलापने से बाज नहीं आता है। बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के दुनिया भर के कई सारे देश जो हैं अपने अपने तरीके से इन देशों को समर्थन कर रहे हैं। कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहा है। अगर बात हम भारत की करें तो भारत इस वक्त जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है और हमास ने जिस तरीके से हमला किया इजराइल पर उसे पूरी तरीके से आतंकी हमला बताते हुए इसकी निंदा कर रहा है। और भारत सरकार का स्पष्ट ये कहना है कि वो पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इसका हर दिन प्रमाण देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हालांकि बार बार विश्व स्तर पर पाकिस्तान के द्वारा यही कहा जाता है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते, कोई भी आतंकी वहां पर पनाह नहीं लेता, लेकिन अगर हम हालिया इंसिडेंट देखें तो वहां पर लगातार आतंकियों को टारगेट करने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार पिछले 6 से 7 महीनों में पाकिस्तान में 5 से 6 आतंकवादियों को सीधे तौर पर अज्ञात लोगों ने शूट कर दिया है। बता दें कि ये अज्ञात लोग जो हैं सीधे तौर पर उन आतंकियों को निशाना बना रहे हैं जो कि भारत के दुश्मन हैं या फिर वो विश्व स्तर पर पूरी तरीके से हिट लिस्ट में शुमार है, उन्हें टेररिस्ट करार दिया गया है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान ये कहता है कि वो आतंकियों को पनाह नहीं देता, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, ये आतंकवादी उन्हीं के सरजमी पे मारे जा रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से मसूद अजहर के बेटे और उसके करीबी के भी अभी हाल ही में मारने की खबरें सामने आई थी और ये स्पष्ट हुआ था कि कैसे मसूद अजहर भी पाकिस्तान में रहता है और उसके करीबियों को भी एक एक करके अज्ञात शूटरों के द्वारा ढेर कर दिया गया है। तो ये खबरें लगातार सामने आ रही है
और इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान भले ही ये इनकार करता रहे कि उन्होंने आतंकवाद को शय नहीं दी है, आतंकवादियों को बढ़ावा नहीं दिया है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती है, जिस तरीके से घटनाएं सामने आती है, आतंकवादियों के खात्मे की खबरें सामने आती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान कैसे नेशनल लेवल पर कुछ अलग बातें करता है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत हम पाकिस्तान की देखें तो बिल्कुल अलग नजर आती है। जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान जो है वो भारत को कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे पर घेरने का तो प्रयास करता है, लेकिन हर बार उसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने जहर उगलते हुए सीधे यह कह दिया कि कश्मीर में लोगों की आवाज को दबाया जाता है। जिस तरीके से गाजा में इस वक्त लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, फिलिस्तीन की आवाज को दबाया जा रहा है, ये बातें पाकिस्तान ने कहीं और नहीं, किसी मीडिया के माध्यम से नहीं, बल्कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कही, जहां पर उनको यह लग रहा था कि यहां पर भारत जो है वो घिर जाएगा। दुनिया भर के तमाम देश यहां पर शामिल होते हैं, ऐसे में भारत जो है इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन भारतीय डिप्लोमेट के द्वारा पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया गया कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर भारत के डिप्लोमेट ने यही बातें कही कि पहले तो पाकिस्तान अपनी 3 हरकतें सुधारे, उसके बाद यह ध्यान रखे कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि इसे भारत से अलग नहीं समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और लगातार जो जम्मू कश्मीर में विकास है वो देखने को मिल रहा है कि कैसे मोदी सरकार के प्रयासों से वहां पर एक बार शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वहां से आर्टिकल 370 को हटाया गया, इसके बाद से ही लगातार ना सिर्फ वहां पर शांति व्यवस्था कायम है, बल्कि वहां पर रोजगार का इजाफा हो रहा है। इसी के साथ ही अभी हाल ही में G20 समिट हुआ था, जिसमें कई देशों के जो प्रतिनिधि है वो आए थे और उन्होंने कश्मीर का भी दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कश्मीर की भी काफी ज्यादा तारीफें की थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।